सर आपका माइक ऑफ है। बच्चे क्लास में क्विज हो रहा है तो इस वजह से माइक ऑफ है। Sir, we don't hear anything. I think your loudspeaker is silent. Zakir, this is the quiz time in the class, so that's why mic is muted. Muted. ठीक है, यहाँ पे quiz लिखा हुआ है. This is the quiz time.
ओके जी, बस 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 ओके, व्हाट हैपेंड? यू वांट टू से समथिंग? In that case, I cannot mark your presence. Which one ले लिया? ओके, आप लोग फिर आगे आ जाए थोड़ा सा। मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं वो कहाँ तक जलसा एक बैठा हुआ है। यस, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या? अभी नहीं बता रहा मैं, उसको पढ़ूंगा फिलहाल। उसमें मैंने बताया okay, in the previous session we were talking about some कंट्रोल मेथड्स, और उन कंट्रोल मेथड्स के अंदर हमने ड्राई हीट की बात की, बॉइलिंग और मॉइस्ट हीट की बात की। ड्राई हीट में हमने कुछ एग्जांपल्स ली और ये भी देखा कि ड्राई हीट इन कंपैरिजन टू मॉइस्ट हीट कितनी इफेक्टिव है, और उसमें दोनों में क्या हमारे पास कंपैरिजन आ सकता है। इसके साथ साथ ये देखा कि इफ वी वांट टू स्टेराइल द ग्लास apparatus and we have to provide the temperature up to 170 degrees centigrade for 2 to 3 hours, and this would be without air circulation, and if we provide the air circulation into the oven, that temperature may reduce. And after that we discussed that some other physical methods, and in it the first was the filtration process, and the filtration process we use a membrane, and its pore size I told you that would be 0.25 micron meter, and this is very small size that can filter all the bacteria. और इसमें ये filtration assembly हमारे सामने थी। इसमें हमने देखा कि this is a bottle in which we add our compound that we want to filter, and the filter paper is attached on the bottom, और नीचे जो हमारे पास सक्शन पंप है that creates vacuum and it facilitates the filtration process, and the filtrate will accumulate here, और इस तरह से हम इसको मज़ीद अगर हम थोड़े से डिटेल में देखने की कोशिश करें तो फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है that is used for the production of unpasteurized beer. There are many types of beers that cannot be pasteurized, so the filtration process can be used for the production of unpasteurized beer. This can be used for the sterilization of sugar solutions, because in the previous session I told you sugars can caramelize at higher temperature, so we avoid the autoclaving for the sugar solutions, and we do other sterilization procedure for it we perform. और इसके अलावा that filtration process can be used for the clarification of wine, और इसके साथ साथ whenever the water is contaminated with the bacteria and giardia cyst, that can be filtered to make it free of giardia cyst and bacteria. और ये cyst की हमने बात पहले भी किसी ज़माने में की थी, जहाँ पे मैंने क्वेश्चन शायद cyst और oocyst का जिक्र हुआ था, प्रोटोजोन्स का when they contaminate, और वहाँ पे मैंने ये बताया था, yes yes I told you, याद करें जहाँ मैंने बताया था कि जो वाटर रिजर्व्स हैं they can be contaminated with cyst and oocyst, and this contamination spread through the feces contamination. ये डायनामिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक ग्रोथ में था, बल्कि कंट्रोल मैकेनिज्म के स्टार्ट में था। लेट मी रिमाइंड यू गाइस, अभी बताते हैं फिर से, अब मुझे मिल जाए सही वो इस टाइम। ओके जी, ओके जी।
सर ये इंटेस्टाइनल पैथोजेंस होते हैं ना? हाँ जी, ये प्रोटोजोन्स होते हैं भाई। ये देखें, दिस वाज हियर प्रोटोजोन, cysts and oocysts, Giardia, lamella and Cryptosporidium parvum, feces contamination, water boiling, जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था डायनामिक सुपरओकैरियोटिक ग्रोथ, मतलब उसी टाइम मुकर जाते हैं कि हमने पढ़ा ही नहीं। थैंक गॉड आई हैव दैट स्लाइड इन दिस कंप्यूटर टू प्रूव माई सेल्फ दैट आई हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस सेशंस। तो यहाँ पे मैंने ये सिस्ट और ओवरसिस्ट का डिफरेंस भी आई थिंक बताया था। रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, उसमें ये बात हुई होगी। बताओ बंदा परेशान हो जाए कि मैं कर क्या बैठा हूँ। ओके, अगर सैफ होता ना तो वो मेरा साथ जरूर देता, इस अगर प्रेजेंट होता यहाँ पे तो। यही सारा आपने पढ़ाया था, आपने ये भी बताया था कि ये डायरिया कॉज करते हैं। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, फिल्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं और मैं यहाँ भी ये बता रहा हूँ कि whenever the water is contaminated with the bacteria and Giardia cysts, that can be filtered to make it clear and make it free of bacteria and Giardia cysts। और इसके साथ साथ फिल्टर पेपर का साइज हमने डिस्कस किया था कि that size should be of 0.25 या 0.2 माइक्रोन मीटर। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे एक और है कि this filter paper that would be made up of polycarbonate sheet or the cellulose nitrate, ये filter paper हमारे पास जो है that would be made up of a special structure। इसके साथ साथ इन्हीं filter papers की कुछ modification आती हैं, जैसा कि यहाँ पे depth filters लिखा हुआ है। depth filters are the filters which are charged। Microorganisms have a specific charge on their surfaces। Do you know what kind of charge microorganisms have on their surface? Either it is positive or negative? Negative. How? Or why? What is your logic? Why would they have negative charge on the surface? आप अपने पास ये क्वेश्चन लिखें। हमने चैप्टर 3 पढ़ना है सेल मॉर्फोलॉजी, उसके अंदर हमने सेलुलर वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उस टाइम में याद करवाइएगा, डिटेल में बात इस पे करेंगे कि व्हाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ स्पेसिफिक चार्ज, इधर इज पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन द सेल सरफेस। ओके, depth filters are charged. For example, depth filters are charged with a positive charge, and microorganisms, if they have a negative charge, then they will pass through that filter. Positive will attract the negative, and microorganisms will entrap into the filter paper, and the clear filtrate will pass through it. Okay? These are called the depth filters. And the second one, that is the modification. This is called high efficiency particulate air filters. These are commonly termed as HEPA filters, and HEPA filters are normally installed in the laminar hoods, जो हमारे पास नीचे लैब में लैमिनार में उसके अंदर इंस्टॉल है। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स हैं, BSL लेवल 2 या BSL लेवल 3 की, बायोसेफ्टी लेवल 2 या 3 की। उसके अंदर HEPA filter installed है that filter the air that is coming into the lab and filter the air that is going into the environment or the atmosphere। तो HEPA filter इसमें जो filter इसमें attached है that is of 0.3 micron meter pore size। ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिल्ट्रेशन की कुछ एग्जांपल्स थी और साथ में ये था कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ दैट फिल्टर पेपर और हम इसमें किस तरह से क्या-क्या करते थे। नेक्स्ट वन दैट इज द रेडिएशन, और रेडिएशन इज आल्सो अ फिजिकल मेथड to control the microbial growth and kill the microorganisms। and रेडिएशन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास अगर हम स्पेक्ट्रम देखें, लाइट स्पेक्ट्रम देखें, उसमें एक विजिबल रेंज होती है, एक अल्ट्रावायलेट रेंज। ठीक है, तो कहां से कहां तक वेवलेंथ किस तरफ को बढ़ती है, आप में से मुझे बता सकते हैं? फॉर एग्जांपल दिस इज द विजिबल, ये कितने से कितना होता है? 400 से 730। तुम्हारे कहने पे लिख रहा हूँ 730। क्या क्या यूनिट क्या है? नैनोमीटर। ठीक है, और यूवी वेयर इज द यूवी? इधर नहीं, इधर यूवी इज हियर। यूवी की जो रेंज होती है वो कोई 200 से शायद 350 तक होती है आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो यहाँ पे करके होती है। तो ये यहाँ पे आएगा ना टुवर्ड दिस साइड, बाकी यहाँ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जितनी वेव्स शॉर्ट होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। फिजिक्स, wavelength short, frequency high। when the frequency is high there would be more energy in that waves। ठीक है,
तो more energy would reside in the short waves with the short wavelength towards here. ठीक है. अच्छा, अब रेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग. दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है दिस वन इज डिफरेंट. अभी सबसे पहले देखते हैं आयोनाइजिंग को. आयोनाइजिंग में हमारे पास सबसे पहले आती है गामा रेज, और गामा रेज जो है दे यूजुअली प्रोड्यूस थ्रू द डिकेइंग रेडियो आइसोटोप्स. You know that radioisotopes are decaying all the time and they are converting into the other one. जिसके साथ हमारे पास एक हाफ लाइफ का कंसेप्ट भी आता था फिजिक्स में. सो गामा रेज विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिकेइंग रेडियोआइसोटोप्स, और इसमें हमारे पास जो एक्स रेज हैं, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर्स इसमें सिक्रीट करेंगे गामा रेज को, और इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि दे वुड फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल्स. Superoxides and hydroxyl free radicals that would destroy the DNA, और DNA डिस्ट्रॉय होगा that would possibly damaging the cytoplasmic membrane. इसके साथ साथ और ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी. दो काम हो रहे हैं. जो आयोनाइजिंग रेज है वो क्या कर रहे हैं हमारे पास, सुपर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं, डीएनए को डैमेज कर रहे हैं, साथ साथ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है. दिस इज द मोड ऑफ एक्शन फॉर द गामा रेज. ओके. इसके साथ साथ एक मजे की बात यहाँ पे ये है कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, नॉर्मली ये समझा जाता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर मोर resistant to the harsh condition because they have an extra layer over them. But यहाँ पे gram negative they are more susceptible to the gamma rays, to the ionizing rays. इसकी वजह क्या है, इस पर बात करेंगे. अच्छा, इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा कि endosperms या endospores they are resistant to it, or these ionizing rays they can be used for the heat sensitive materials. हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए आपने एक काम पहले किया था फिल्ट्रेशन का, तो लेकिन याद रखिएगा फिल्ट्रेशन आप उन्हीं केमिकल्स के लिए कर सकते हैं विच आर इन द लिक्विड फॉर्म. जो कंपाउंड हमारे लिक्विड फॉर्म में नहीं है तो फिल्टर भी हम नहीं कर सकेंगे. तो उसके लिए फिर अल्टरनेट मेथड आपके पास आ गया है कि यूज ये आयनाइजिंग रेज. इसके अलावा आयनाइजिंग रेज को लेकर कुछ एफडीए की गाइडलाइंस हैं. एफडीए इज द फूड एंड ड्रग समथिंग authority, American based FDA, that has multiple guidelines for the treatment of edible and the things which are in direct contact with the human being. इसको इन वेव्स को यूज कैसे करना है और कितना एक्सपोजर देना है, कौन सा एक्सपोजर हमारे पास किस हद तक खतरनाक हो सकता है. तो FDA guidelines के accordingly we have to expose the edibles to the ionizing rays. और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आगे, FDA गाइडलाइंस आएंगी. और इसके साथ साथ ये जो ionizing rays हैं they can be used to kill the trichina parasite, that is the common parasite of the fruits and vegetables. तो ionizing rays या gamma rays जो हैं इनको यूज किया जा सकता है. इसके अलावा सेल्मोनेला स्पीशीज E. coli O157:H7 ये इन्फेक्शियस एजेंट है पोर्क. इसके अलावा मीट इंक्लूडिंग पोल्ट्री, बीफ, लैम एटसेट्रा का. तो इन सेल्मोनेला को और E. coli को किल करने के लिए भी हम गामा रेज का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं. इट इज रिकमेंडेड बाय द FDA गाइडलाइन, FDA. इसके अलावा जो जी यहाँ पे देखें, हमने किसी ज़माने में पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेन एंड स्पीशी. तो ये स्ट्रेन है E. coli का O157:H7. दिस इज अ स्ट्रेन, दैट इज मॉडिफाइड स्ट्रेन. ठीक है, तो स्ट्रेन है इसमें. अगला है रेडिएशन. इसी में रेडिएशन को आगे एक्सटेंड करते हैं. यूवी रेज की अगर बात करें तो वी कैन यूज द यूवी रेज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रेंज 220 to 300 nanometers. Here there is a slight variation and their ability is to damage the DNA. और हमने किसी ज़माने में हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे कि जो यूवी रेज है इनका मोड ऑफ एक्शन है, दे फॉर्म द थायमिन डाइमर्स. FSC में पढ़ा होगा, दे फॉर्म द थायमिन डाइमर्स. थायमिन, डीएनए में थायमिन होता है ना, थायमिन डाइमर्स बनता है. किस तरह से, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड हियर लाइक दिस वाज द T एंड इधर A मिसाल के तौर पे, तो दिस T वुड फॉर्म अ डाइमर विद इट, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस T विल फॉर्म, दिस इज द थायमिन डाइमर्स. तो यूवी लाइट्स जो है ये
थायमिन डायमर्स बनाती है, डीएनए डैमेज करती है, और डीएनए डैमेज के रिजल्ट में माइक्रोबियल डेथ। बट एंडोस्पोर्स आर रेजिस्टेंट टू इट। मसला ये है यूवी लाइट्स के साथ कि दे हैव पुअर पेनिट्रेशन। जो सरफेसेस हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन ग्लास टाइप्स जिसको क्रॉस नहीं कर सकते ये। और इसके अलावा अगर आप फूड स्टफ है तो सिर्फ अपर लेयर को पेनिट्रेट करेगी, डीप फूड के अंदर पेनिट्रेशन नहीं करेगी। रेंज बड़ी शॉर्ट है। इस कमरे के अंदर है, अगर ये इतना बड़ा कमरा है इसके अंदर हमें 4-5 यूवी लैंप्स लगाने पड़ेंगे कोई इधर, क्योंकि रेंज बहुत शॉर्ट है इसकी फंक्शन की। बट इट इज़ डिस्करेज्ड बिकॉज इट प्रमोट्स अ स्किन कैंसर। और इसमें हमने कभी FSC में पढ़ा होगा ज़ीरोडर्मा पिगमेंटोसम, दैट वाज अ डिजीज। उसमें स्किन पैचेस बनते थे एंड दे वर ड्यू टू द थायमिन डाइमर्स, और थायमिन डाइमर्स दे आर इन द रिजल्ट ऑफ यूवी एक्सपोजर। इसी वजह से जो हाई आल्टीट्यूड के लोग हैं, हाई आल्टीट्यूड, वहाँ पे चूँकि यूवी लाइट जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उनकी स्किन पे पैचेस हुआ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जी नेक्स्ट वन दैट वी हैव दैट इज माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव ओवन घरों में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। They can also be used to kill the microorganism, to control the microbial growth. But keep in mind, microwaves, they cannot directly kill the microorganisms, but they can indirectly kill the microorganism. How? When we put the food into microwave oven, microwaves will heat up the food, and that generated heat can kill the microorganisms. Directly, microwaves, they do not have any ability to kill the microorganisms. Okay? As well as we can say that microwaves, they do not affect directly because they do indirect action. हमने कल पढ़ा था when we provide the autoclaving conditions, and their conditions were 121 degree centigrade and 15 psi. There I told you 15 psi itself cannot kill the microorganisms. Pressure itself cannot kill. But yes, but here if we provide the high pressure up to 130,000, yes, 130,000 psi pressure दे दें, that would be enough to kill the microorganism. That would be enough to denature the proteins. So 15 psi and above pressure, that would not enough to kill the microorganism. But if we provide a high pressure, this is very high pressure, 130,000 pressure. No, alone 130,000 psi, and that would denature the proteins, and in that aspect that will alter the cell permeability, and cell permeability जब हमारे पास चेंज होगी तो माइक्रोऑर्गेनिज्म would die. लेकिन ये हाई प्रेशर का हमारे पास बेनिफिट ये है कि when we provide the high pressure to the foods पे हाई प्रेशर जब अप्लाई करें माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, एडवांटेज ये है कि इस हाई प्रेशर से फूड का ना फ्लेवर खराब होता है ना कलर खराब होता है। बाकी जब हीटिंग वगैरह करते हैं उससे फ्लेवर भी इफेक्ट होगा और उससे कलर भी बाजू का इफेक्ट होगा, रेज भी करेंगे। लेकिन हाई प्रेशर that has advantage that it would not affect the color. जी most favorable नहीं है because इसकी सारी लिमिटेशन है। इसके कभी इस डोमेन में हम मज़ीद डिटेल में गए तो पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। हाई प्रेशर इतना जनरेट करना, उसके लिए पूरे चैम्बर्स बनाना, लॉट ऑफ थिंग्स। बट बहुत सारी फूड्स ऐसी हैं जो कि बड़ी कॉस्टली आती भी हैं और हम इसको करते भी हैं। So guys, that was the physical methods that we discussed to control the microorganism. In the physical methods we discussed heating, filtration, radiation और pressure, ठीक है। और इसमें हमने heating की काफ़ी डिटेल पढ़ी और उसमें हमने boiling, pasteurization, autoclaving, dry heating और साथ ही साथ हमने filtration का पढ़ा। Radiation में हमने 2-3-4 पढ़ी, ionizing और non ionizing, इसमें X-rays, microwave, gamma rays पढ़ेंगे। कुछ limitations बड़ी short सी पढ़ी हैं। आप साथ ही साथ जो आज लेक्चर हुआ होता है उसको डेली बेसिस पे उसको नोट्स में से पढ़ लिया करें क्योंकि ये मसला करेगा। एंड दिस इज वी आर कंप्लीटिंग द 6th वीक एंड होपफुली एट द स्टार्ट ऑफ 9th वीक you guys would have mids एकेडमिक कैलेंडर नहीं है आप लोगों के पास? एकेडमिक लगेगा भी तो मिड्स तो होंगे अनटिल अनलेस क़यामत ही आ जाए, लॉकडाउन में लगे नहीं एक और हो जाएगा। तो 4 ही मैंने कहा था लेने, 2 पहले 2 बाद में। तो मैं अपने प्लान के मुताबिक ठीक जा रहा हूँ जो मैंने बताया हुआ है। अच्छा जी ना ओके जी। the next that we are going to start, these are the chemical methods which can be used to control the microorganisms.
व्हाट हैपेंड? 4 से मसला हो रहा है? नहीं सर, बेस्ट 3 सिलेक्ट हो गया ना। कोशिश करेंगे, अगर 4 हो गए तो बेस्ट 3 कर लेंगे, 3 हो गए तो बेस्ट 2 कर लेंगे। और अभी तो आपकी असाइनमेंट्स काफी सारी रहती हैं, वो भी लेनी है आपसे। सर अगर लॉकडाउन के बाद अगर हमारे सारा कुछ ऑनलाइन होगा ना, लाइक क्विज़ेस और मैथमेटिक्स। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यू वांट टू बी हैप्पी कि सारा कुछ ऑनलाइन होगा जिस तरह पिछले सेमेस्टर में सारा कुछ चला था। नो, इट इज नॉट हैपनिंग अगेन। डेफिनेटली यू हैव टू कम। हम बाहर लॉन में धूप होगी और कुर्सियां रखेंगे और पेपर लेंगे। क्या करेंगे? फरमाइशें बढ़ती हैं सारे आप लोगों की भाई। ओके, चलें। Chemical methods for the microbial control. We use many chemicals, a lot of chemicals in daily routine to kill the microorganism on different surfaces, including the hands, skin. लैब के अंदर आप काम करते हैं, सरफेस स्टेरिलाइजेशन करते हैं, और स्टेरिलाइजेशन के लिए केमिकल्स व्हिच मे बी यूज्ड दे मे टर्म्ड एज स्टेरिलेंट्स। ठीक है, स्टेरिलेंट्स। और स्टेरिलेंट्स जो हैं दे कैन बी यूज्ड टू किल द एंडोस्पोर्स एज वेल। और एंडोस्पोर्स को किल करने के लिए स्टेरिलेंट्स हैं दे वुड टेक 6 to 8 hours एक्सपोजर। और बहुत सारे जो क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम स्टेरिलेंट्स के साथ ट्रीट करवाते हैं, और इसके लिए ख़ास तौर पर जो क्लोरीन डाइऑक्साइड है दैट इज एबल टू क्लीन द क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू किल द एंडोस्पोर्स। इसके अलावा कुछ हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हमारे पास यूज हो सकते हैं दैट मे हैव एबिलिटी to kill the endospores in the short time, to kill the vegetative cells in the short time, but still it is difficult to kill the endospores in a very short time. इसके अलावा हमारे पास कुछ और केमिकल्स जिनके नाम हैं फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये हमारे पास हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिनको शॉर्ट एक्सपोजर जिनका काफ़ी है, बट एंडोस्पोर्स इससे किल नहीं होते। एंडोस्पोर्स को किल करने के लिए स्टिल हमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर देना पड़ता है, और these formaldehyde, glutaraldehyde, hydrogen peroxide, they can be used to treat the semi-critical instruments. Hydrogen peroxide commonly इस्तेमाल होता है wound dressings में, whenever the emergency facilities और जो भी हमारे पास hospitals हुआ करते हैं उन्होंने dressing करनी होती है, तो they use the hydrogen peroxide mixture, उसके साथ iodine tincture। तो हमने इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है कि हाँ उसके लिए इस्तेमाल होता है, और ये हम पढ़ेंगे हम आज नहीं इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड का क्या यूजेज हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के, और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये किल करती है डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर हम देखेंगे कि आयोडो-4 और आयोडीन टिंक्चर्स में क्या डिफरेंस हुआ करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर कंपोजिशन। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास केमिकल्स हैं इनको हम कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास हम इसको जनरल अगर कहें, अभी हमने पढ़े हैं हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स, उसके अंदर हमने पढ़े फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आएगी जनरल पर्पस डिसइंफेक्टेंट्स, और जनरल पर्पस डिसइंफेक्टेंट्स वो होंगे विच कैन बी यूज्ड टू ट्रीट द नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, ये नॉन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डील करते हैं, बट दे डू नॉट किल द एंडोस्पोर्स। अभी आप ऊपर देखें जो हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट्स थे दे कैन किल द एंडोस्पोर्स विद प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, लेकिन ये जो हमारे पास हैं द इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट्स दे डू नॉट किल द एंडोस्पोर्स। और इसके साथ साथ हमारे पास लो लेवल डिसइंफेक्टेंट्स हैं, दे नीदर किल एंडोस्पोर्स नॉर नेकेड वायरसेस, ना नेकेड वायरसेस को भी किल नहीं करते। इसके हमारे पास एग्जांपल है क्वार्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, पढ़ेंगे इसी चैप्टर में इसकी डिटेल के व्हाट आर द क्वार्ट्स। और देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट हैव देयर इफेक्ट इन द सिलेक्शन ऑफ केमिकल एजेंट्स। उसमें हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर, टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ टाइम, कितने टाइम के लिए हम एक्सपोजर दे रहे हैं केमिकल्स का, केमिकल्स जो हैं उनकी डाइल्यूशन कितनी है, इधर दे आर कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। यू वुड बी क्लियर अबाउट इट कि केमिकल जितने ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगे दे वुड बी ऑफ हाई पोटेंसी, और जितने उसको डाइल्यूट करते जाएंगे हमारे पास उसका जो इफेक्ट है वो डाइल्यूटेड शो होगा। फिर टेम्परेचर इफेक्ट करता है। हमने पीछे एक एग्जांपल है पढ़ी थी सोडियम हाइपोक्लोराइड की, जिसमें टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज हुआ था। क्या थी एग्जांपल?
हमने सारे ऐसे से हिलाया था, इसलिए मुझे शक हुआ था कि आपको पूरा याद नहीं आया वो। चलें जरा, सोडियम हाइपोक्लोराइड की एग्जांपल पढ़ी थी। 50 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर चेंज हुआ था 55 पे। जल्दी जल्दी, एक मिनट ना, वो बता रहे हैं, रुक जाओ। चलें, हाउ टेम्परेचर इफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ chemicals to kill the microorganisms with an example. Yes. 150 डिग्री 150 सेकंड्स रिक्वायर्ड होते थे सोडियम हाइपोक्लोराइड को किल करने के लिए at 50 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड व्हेन 60 seconds. और it means that temperature may affect the activity of the chemicals जिस पे हमने उसको ट्रीट करवाना है। इसके अलावा डाइल्यूशन आल्सो मैटर्स। ठीक है, एक ये छोटी सी हमारे पास एक स्लाइड है कि व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी सेलेक्ट द जर्मिसाइडल केमिकल्स, और इन पैरामीटर्स में हमारे पास आते हैं टॉक्सिसिटी, हाउ टॉक्सिक आर द केमिकल्स। ये ना हो कि हम केमिकल्स को इस्तेमाल करें और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो किल कर दे लेकिन हर तरफ टॉक्सिसिटी फैला छोड़े। एंड एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाइपोक्लोराइड वर्सेस फिनोलिक्स की बात यहाँ पे करेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर पे कौन सा इफेक्टिव है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर फॉर एग्जांपल अगर डोमेस्टिक वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट को हमने करना है बायोहैजर्ड फ्री, तो उसके लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे, हाइपोक्लोराइड का क्या इफेक्ट है, फिनोलिक्स का, इस पे बात करेंगे। कंपैटिबिलिटी विद द मटेरियल बीइंग ट्रीटेड, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए और रेजिड्यू ना छोड़े, कॉस्ट इफेक्टिव हो, अवेलेबल हो मार्केट में, स्टोरेज और स्टेबिलिटी कंडीशंस बेहतर हो, आप उसको स्टोर कर सकें, वो स्टेबल रहे। ये ना हो कि आपने उसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर किया है तो वो स्टेबल ना हो, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या वोलेटाइल हो और वो उसके फ्यूम्स बन के वो evaporate हो जाए, और एनवायरमेंटल रिस्क ना कॉज करे, बिकॉज देयर आर मेनी केमिकल्स व्हिच कैन बी ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। इस पे मजीद इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे और होपफुली बाय द Tuesday we will be completing this chapter. Yes. पता नहीं, चीजें याद नहीं रहती मुझे। अच्छा जी, मिस अदीबा असलम, अफान तारिक राना, अफान, आमिना शहजाद, अनीका तबस्सुम, अनिला खान, प्रेजेंट सर। अक्सर रुखसाना, अरीबा नासिर, प्रेजेंट सर। इज़्ज़ा नदीम, गुलाम रुबानी, इकरा शहबाज, प्रेजेंट सर। इकरा सोहेल, इज़्ज़ा आमिर, जुवेरिया असलम, प्रेजेंट। मरियम नदीम, मरवा अब्बास जी, मरवा अब्बास, महरीन, मोहम्मद बिलाल अरशद, मोहम्मद हारिस अब्बास खान, नुमान अली,
Yes, sir. Uzair is absent. Munazzar Shafiq. Present, sir. Again, Nimra Nadeem. Present, sir. Nimra Khalik. Nishad has gone. Rabia Sharif. Rahima Rana. Rana Nabil. Present, sir. Rida Athar. Present, sir. Sahar Sajid. Saifullah Malik. Yes, sir. Sahrish. Sundas Aruj. Present, sir. Sayyid Karamat Hussain Shah. Usman. Present, sir. Mania Mansoor. Zainab. Zakirullah. Present, sir. Sir, Zainab present. Yes, sir. Jirwa Rahat. Jirwa. सर मरियम का नेट चला गया, वो प्रेजेंट थी, उसका मैसेज आया। मैसेज आया तो आप प्रेजेंट लगा दें फिर। सर अफान तारिक प्रेजेंट है। अफान तो माँ आयो तो कहीं मेरा से? नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा जी, क्या कह रही हैं? नहीं, टीए लेके गई है परसों। चेक कर। नहीं, वो इतनी इररिस्पॉन्सिबल नहीं है। शी इज वेरी रिस्पॉन्सिबल मैम। उनका नाम खुफिया है, मिस खुफिया।